Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel NEET Gnan. Students, here we are studying NEET Extract Biology, and in this journey of this course, today we are going to start with very first chapter of this course, that is reproduction in organism. This is the chapter of 12th NCERT syllabus. So first of all, if we talk about from the NEET exam point of view, so इस चैप्टर में से एवरी ईयर ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन की एवरेज रही है. आफ्टर दैट if we talk about the contents of this chapter, then it mainly focuses on reproduction and its types, that is asexual reproduction and sexual reproduction. I hope you all are ready for this journey. Before starting the journey, I would like to remind you the core concepts of this course. The first one is, here you will have word to word explanation of all the chapters of NCERT biology. What is the importance of it? So students, you all know very well that each and every line of NCERT have some special meanings. Each and every line of NCERT has some hidden concepts. So here with you, I will try to reveal all these hidden concepts. Here we will try to digest all the lines very effectively. Second core concept of this course is, we will try to establish text to question relationship. Again, what is it? So students, you all are preparing for NEET and you all are referring the NEET and you all are referring NCERT textbook for your NEET exam very carefully. But instead of this, you all make silly mistakes at the time of solving the questions. What is the reason? So students, here मैं आपको बताना चाहता हूँ कि at the time of solving question you fail to apply your NCERT knowledge to this question, right? So here I will try to change your reading habit. How? So see, whenever you are reading NCERT textbook, whenever you are reading any line or any paragraph of NCERT textbook, after reading it you have to take a pause and you have to think from the examiner point of view. Suppose अगर आप एग्जामिनर है और आपने जो कुछ कंटेंट NCERT का पढ़ा है उसमें से अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, देन हाउ कैन यू फ्रेम द क्वेश्चन, राइट? जब आप इस तरह से NCERT को पढ़ना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गेट अडेप्टेड टू फ्रेम द क्वेश्चंस फ्रॉम द कंटेंट दैट यू आर रीडिंग. And when you are reading the NCERT from the examiner point of view, not from the reader's point of view, I bet you will definitely crack the NEET exam with good marks, right? So the third core concept of this course is, here we will try to find out some corner information. Students, यहाँ पर हम हर फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, हर फिगर के लेबल को एक्सप्लेन करेंगे और हर फिगर के कैप्शन को भी स्टडी करेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं और कभी कभार एग्जामिनर ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में पूछ लेता है और जो मार्क्स बहुत इजी तरह से हमें मिलने चाहिए वो मार्क्स हम नहीं गेन कर पाते हैं, राइट? सो हियर आवर मेन फोकस विल ऑल्सो बी ऑन दिस कॉर्नर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. आई होप the concept of this course is clear to you. Let's start the chapter. Each and every organism can live only for a certain period of time. Right? Students, ये चीज़ क्लियर है कि जो भी सजीव इस अर्थ पर जन्म लेता है, whether it is plant or animal, उनका मृत्यु निश्चित है. आगे बढ़ते हैं. The period from birth to the natural death of an organism represents lifespan. So here, what is lifespan? Lifespan is a period from birth to the natural death. Students, यहाँ पर natural word important है, याद रखिएगा कि here not an accidental death, natural death of an organism, right? That is involved in lifespan. स्टूडेंट्स, ये एक पोटेंशियल लाइन है जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस बनते हैं. आपको जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं
उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पान्स ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1, right? The figure is on the next page, so we will see it later on. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the species provided. Right? Students, ये आपके लिए होमवर्क है। आप NCERT के नेक्स्ट पेज पे दिए गए ऑर्गेनिजम्स को देखिए और उनके लाइफ स्पान को फाइंड करके कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट, एग्जामाइन द लाइफ स्पान्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंटेटेड इन द फिगर 1.1। हम एग्जामाइन करेंगे और उसमें से भी कुछ कंक्लूजन निकालने का ट्राई करेंगे लेटर ऑन। ओके, नेक्स्ट, इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूटिंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। व्हाट डज इट मीन? सो स्टूडेंट्स, सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनका लाइफ स्पान छोटा भी हो सकता है। कितना छोटा? ऑफ अ फ्यू डेज। इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मे फ्लाई, देन द लाइफ स्पान ऑफ इट इज जस्ट ऑफ अ डे, राइट? एंड it may be as long as few thousand years. What again? The example is of people tree. People tree का लाइफ स्पान है अराउंड 2500 years, right? Okay, next. So between these two extremes are the lifespans of most other organisms. कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने आगे कहा कि लाइफ स्पान कैन बी वेरी शॉर्ट एज वेल एज वेरी लॉन्ग, राइट? हियर सपोज द मिनिमम लाइफ स्पान इज ऑफ मे फ्लाई, दैट इज ऑफ 1 day, एंड द मैक्सिमम लाइफ स्पान इज ऑफ पीपल ट्री, दैट इज ऑफ 2500 years. सो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो भी है उनके लाइफ स्पान ये रेंज के बीच में ही होंगे, दैट मीन्स फ्रॉम 1 day to the 2500 years. यस, क्लियर? सो बस यही कहा गया है कि बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स, दैट मीन्स बिटवीन द मिनिमम टू द मैक्सिमम आर द लाइफ स्पान्स ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स. ओके, नेक्स्ट, यू मे नोट दैट लाइफ स्पान्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। कहने का मतलब ये है कि हियर देर इज नो को रिलेशनशिप बिटवीन द लाइफ स्पान्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइजेस। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की साइज को कंपेयर करके हम किसी टू ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट? समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि सपोज वी ऑल हैव सीन क्रो एंड पैरट, राइट? दिखने में ऑलमोस्ट बोथ आर वेरी सिमिलर, राइट? बट when we talk about their lifespans, then they have vast difference. The lifespan of crow is around 15 years, while the lifespan of parrot is around 140 years. Let's take the another example from the plant kingdom, that is of mango tree and peepal tree. We all have seen these two trees. Again, they are almost similar in terms of size, but when we compare the lifespans, again there is a vast difference, right? The lifespan of mango tree is around 200 years, while the lifespan of peepal tree is around 2500 years. So कहने का मतलब यहाँ से ये है कि here there is no correlationship of lifespans of organisms with their sizes. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो वॉट एवर बी द लाइफ स्पान, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। आगे हमने बात की कि जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। दैट मीन्स नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, राइट? नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल।
एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, राइट। कि कभी कभार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्सेप्शन फॉर द स्टेटमेंट नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, सो योर आंसर विल बी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन इन्वॉल्व है। सो इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, देन unicellular prokaryotes are bacteria and unicellular eukaryotes are protozoans, that is amoeba and paramecium, right. So bacteria, amoeba, paramecium or other protozoans are exceptions from these statement, that is no individual is immortal, right. Okay, so ऑब्वियस है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, वाई डू वी से देर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट। समझते हैं इसको डिटेल में। सो स्टूडेंट्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है कि द पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, राइट। द पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। सपोज अगर हम यहाँ बात करें अमीबा में हो रहे रिप्रोडक्शन की, बाइनरी फिशन की, सो विद द हेल्प ऑफ द फिगर गिवन इन आवर एनसीईआरटी, राइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब पेरेंट अमीबा स्टार्ट करेगा रिप्रोडक्शन का, तो सबसे पहले उसका ग्रोथ होगा। आफ्टर द ग्रोथ, नाउ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिवीजन, न्यूक्लियस विल डिवाइड, and what does it is called? It is called as karyokinesis, right। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसको फॉलो करके साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। अल्टीमेटली एक पेरेंट अमीबा में से दो डॉटर अमीबा फॉर्म होंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि क्या क्या हुआ यहाँ पर, पेरेंट इज डिवाइडिंग इनटू डॉटर अमीबा, राइट। पेरेंट इज डिवाइडिंग इनटू डॉटर अमीबा। कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन नो पार्ट ऑफ पेरेंट इज गेटिंग लॉस्ट, राइट। नो पार्ट ऑफ पेरेंट इज गेटिंग लॉस्ट, सिंपली पेरेंट इज लूजिंग देयर आइडेंटिटी, बट व्हाई? बिकॉज द पेरेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर अमीबा। And I hope the statement is clear कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। वाई? बिकॉज जो पेरेंट है अब वो किस तरह से जी रहा है, इन द फॉर्म ऑफ डॉटर अमीबा, राइट। अब ये डॉटर अमीबा भी आगे जाके ग्रो करेंगे, दे विल ऑल्सो एक्ट एज पेरेंट, दे विल ऑल्सो फॉर्म देयर ऑफस्प्रिंग। अगेन दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन साइकिल रिमेन कंटिन्यूड, राइट। सो आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज दैट, given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand years? There may be some processes in living organisms that ensures this continuity. Yes, we are talking about reproduction. कहने का मतलब सिंपली इस लाइंस में यह है कि हमने जाना कि एवरी ऑर्गेनिज्म का डेथ निश्चित है, इसके बावजूद प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज बहुत सारे सालों तक उनके नंबर्स को कैसे मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि जो डेथ की वजह से जो स्पीसीज के नंबर कम हो रहे हैं उस नंबर को वो फिर से मेंटेन करे, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज़ रिप्रोडक्शन, राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट लेक्चर से हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।